Okay, good evening to all of you and welcome to all in Unacademy. Let's crack it. This is lecture number 18 of this video lecture series on mechanics of material, and in this lecture I am going to discuss with you torsional stress analysis, and this is part 1. Correct? And first of all, I would like to introduce myself. Okay, first of all, I would like to introduce myself. My name is Manish Singh and I am mechanical engineering faculty, and I have done MTech from IIT Delhi in production engineering branch, and my latest gate rank is AR 192 in gate 2020, and I'm also engineering services exam written qualified, and I have 9 plus years of teaching experience for gate and engineering services exam for gate and ESE, correct? And I am mentored 10,000 plus students across the India, and my favorite subjects are strength of material manufacturing process, material science, and machine design, correct? Now, as we know that Unacademy is India's largest e-learning platform, then how you can get a part of this? You just write Unacademy learning app on your Google Play Store, and then you can get an app like this, और इसे आप properly download करके install कर लीजिए, correct? Now the question is what you will get from it, correct? So you can see here you can get daily live classes, correct? यहाँ पे आपको daily live classes मिलने वाली है, and during the class you can interact with educator and clarify your doubts. This is one of the biggest advantage of this unique platform, that is Unacademy, correct है दोस्तों? Now you can see here we cover the whole course in structured manner, and their PDFs is also available. Is it clear? And next you can see here we provide you live tests and quizzes in regular basis through which you can evaluate yourself how your preparation is going on and where you make more mistake and how to rectify it, correct? Next, ये जो भी lectures होते हैं दोस्तों, all the lectures are recorded and therefore you have a good chance to access unlimited times. Yes or no? Correct? Whenever you require you can access, correct? These things are the benefits which are available through this particular unique platform, that is Unacademy। और दोस्तों ये सारी चीजें आपको मिल रही है घर बैठे, करेक्ट है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ यू कैन सी हियर फ्यू टॉप एजुकेटर्स, देन यू कैन सी फर्स्ट मारुत तिवारी सर। He is from mechanical engineering branch and he is having 7 plus years of teaching experience, and he is also authored one book, that is Gate in 75 days, correct? Now you can see Ankit Goyal sir, he is from electrical engineering branch and he is scored rank 1 twice in Gate electrical engineering branch, and is also awarded with President of India Gold Medal Award in IIT Indore. And now you can see Sanchit Jain sir, he is from computer science branch and he is also having very vast teaching experience, that is more than 8 plus years, correct? And now you can see Jaspal sir, he is from a civil engineering branch and he is having 12 plus year of teaching experience for GATE and engineering services exam। और दोस्तों इन्होंने रैंक 4 के साथ इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम को क्वालिफाई किया था, and is also work as a scientist and is also qualified GATE and state services exam with top rank, correct? Now you can see here, if we talk about GATE and ESE, then here we have, especially when we talk about mechanical engineering branch, here we have 24 number of courses which are running presently, and similarly for other branches many courses are running, correct? Now you can see here friends, if we talk about GATE and ESE, करेक्ट? तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे दो प्लान है, दैट इज प्लस प्लान एंड आइकॉनिक प्लान, करेक्ट? अगर मैं प्लस प्लान की बात करूँ तो यहाँ पे ये बहुत ही बेसिक प्लान होता है, एंड हियर यू कैन गेट इंडियाज बेस्ट एजुकेटर। आपको यहाँ पे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर दिए जा रहे हैं, करेक्ट है? और यहाँ पे जो कोर्स कवर होता है दोस्तों, और यहाँ पे जो भी लेक्चर्स होते हैं इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती है, इट मींस ड्यूरिंग द क्लास यू कैन इंटरेक्ट विद एजुकेटर and clarify your doubts, correct? And now you can see here the whole course is provided in structured manner and their PDFs is also available, and live test and quizzes। तो ये सारे बेनिफिट आपको दिए जा रहे हैं दोस्तों इस पर्टिकुलर प्लस प्रोग्राम में। नाउ इफ यू टॉक अबाउट आइकॉनिक प्लान, then this is advanced plan and especially designed for preparation of GATE and engineering services exam, and you can get all those things which are available in plus program, but along with this you can get personal coach। दोस्तों आप तक आज तक आपने जब भी देखा है
तो आपको पढ़ने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म तो अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पे मल्टीपल बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ते हैं और वहाँ पे आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता पर्सनली। तो दोस्तों यहाँ पे एक पर्सनल कोच आपको असाइन किया जाएगा। दिस इज वन ऑफ द यूनिक थिंग विच आर प्रोवाइडेड इन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। और ये पर्सनल कोच कोई और नहीं दोस्तों, टॉप एजुकेटर्स होंगे जिनसे आप पढ़ने वाले हो। और आपको जैसे पता है कि जो टॉप एजुकेटर्स होते हैं ऑलरेडी ये टॉप रैंकर्स भी रह चुके हैं, एंड दे नो हाउ टू ऑब्टेन गुड रैंक इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आप इनके एक्सपीरियंस से सीख सकते हो कि कैसे आप भी टॉप रैंक ला सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस प्रोवाइड किया जा रहा है। इट मीन्स कि जब भी आप टेस्ट में अपेयर हो गए, यही टॉप एजुकेटर आपके कंप्लीट टेस्ट को एनालिसिस करके बताएंगे वेर यू मेक मोर मिस्टेक एंड हाउ टू रेक्टिफाइड इट, करेक्ट। एंड सिमिलरली दोस्तों यहाँ पे जो कोर्स होगा वो प्रॉपरली प्लान करके आपको बताया जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस टॉप एजुकेटर्स कि आपको किस जो कंप्लीट कोर्स है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, जो भी आप अपेयर होने वाले होगे, उसमें उसका सिलेबस क्या है, किस तरीके से उसको प्रिपरेशन करना है, किस डेप्थ में प्रिपरेशन करना है, क्या सीक्वेंस होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको ये टॉप एजुकेटर्स बताएंगे। एंड सिमिलरली दिस प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स आर आल्सो अवेलेबल एंड दिस थिंग्स आर गिवन बाय दिस टॉप एजुकेटर्स, करेक्ट है दोस्तों। तो ये सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको इस आइकॉनिक बैच में मिल रहे हैं। नाउ यू कैन सी हियर, अब मैं अगर बात करूं जो स्टूडेंट सीरियसली गेट एग्जाम की या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम की दोस्तों, या फिर बार्क एग्जाम की या फिर इसरो एग्जाम की, करेक्ट है, या फिर किसी पीएसयूज के लिए ट्राई कर रहे हैं दोस्तों, तो वो सारे लोग अपियर हो सकते हैं, इस आइकॉनिक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड स्पेशली इफ दे बिलोंग्स टू सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, करेक्ट, देन दे मस्ट सब्सक्राइब 24 month सब्सक्रिप्शन। एंड इफ यू बिलोंग्स टू फाइनल ईयर एंड पास आउट, करेक्ट, फाइनल ईयर या पास आउट है, तो इनको एटलीस्ट 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, करेक्ट है दोस्तों। एंड सिमिलरली फॉर प्लस प्रोग्राम, करेक्ट है, और जो स्टूडेंट सेमेस्टर एग्जाम्स के प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहे हैं, दे कैन ऑल्सो सब्सक्राइब दिस प्लस प्लान, करेक्ट। एंड इफ यू बिलोंग्स टू सेकेंड ईयर तो आपको एटलीस्ट 24 मंथ का प्लान सब्सक्राइब करना चाहिए दोस्तों। अगर आप थर्ड ईयर से हो तो आपको 18 मंथ का प्लान सब्सक्राइब करना चाहिए। एंड इफ यू बिलोंग्स टू फाइनल ईयर देन यू मस्ट सब्सक्राइब एटलीस्ट 12 मंथ प्लान, करेक्ट, करेक्ट है दोस्तों। नाउ यू कैन डिसाइड योर ओन वे कि आपको किस प्लान को सेलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट यू कैन सी ईयर प्लस प्लान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 1 मंथ से लेके 24 मंथ तक के प्लान अवेलेबल हैं। But if you are planning for competitive exam, then you must go through this 12 month, 18 month or 24 month plan. And you can see here the fee will be 30,250 for 12 month, 38,500 for 18 month and 44,000 for 24 month. ये fee है दोस्तों without promo code. But if you apply my promo code that is MSS10, then you can get 10% discount over this fees. And after discount, the fee will be like this: 27,225 for 12 months instead of 30,250, and similarly 34,650 instead of 38,500, and 39,600 instead of 44,000 rupees, करेक्ट। तो दोस्तों ये फी है विदाउट आफ्टर डिस्काउंट, करेक्ट है। और एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट बता दूं, ये जो 10% का डिस्काउंट है, दिस इज ओनली वैलिड अप टू 28 Feb 2021, सिर्फ इस डेट तक ही वैलिड है दोस्तों, करेक्ट है। एंड आफ्टर दैट 2021 मींस 1 मार्च से, फ्रॉम 1 मार्च 2021 से दोस्तों यही डिस्काउंट रिड्यूस होके 5% हो जाएगा, करेक्ट है। तो बेहतर है कि अगर आप प्लान कर रहे हो सब्सक्राइब करने का तो अभी आके सब्सक्राइब करो, जिससे आपको मैक्सिमम मॉनेटरी बेनिफिट मिल सके। अदरवाइज नेक्स्ट मंथ से आपको ज्यादा फी पे करनी पड़ेगी फॉर सेम कोर्स, करेक्ट। एंड सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट आइकॉनिक प्लान, देन हियर यू कैन सी, यहाँ पे 12 मंथ एंड 24 मंथ के दो एक प्लान है दोस्तों, और उनकी फी है 50,250 एंड 74,000 फॉर 24 मंथ। और इनकी फी है, दिस इज द फी विदाउट प्रोमो कोड, बट इफ यू अप्लाई माई प्रोमो कोड दैट इज MSS10, then you can get 10% discount, and after the discount the fee will be like this: 45,225 and 66,600 for 24 month, करेक्ट। तो दोस्तों ये फी स्ट्रक्चर है आफ्टर डिस्काउंट। नाउ यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली, एंड आज ही जाके अगर आपने अभी तक एनरोलमेंट नहीं किया तो फटाफट एनरोल कर लो, क्योंकि फी हाइक होने वाली है, करेक्ट है दोस्तों। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं टॉर्शन की, थ्योरी ऑफ टॉर्शन।
थ्योरी ऑफ प्योर टॉर्शन या थ्योरी ऑफ टॉर्शन, करेक्ट है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज प्योर टॉर्शन, करेक्ट है। व्हाट इज प्योर टॉर्शन, पहले प्योर टॉर्शन होता क्या है, एंड देन हाउ टू परफॉर्म दिस स्टडी, ये सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं, करेक्ट है दोस्तों। तो लेट्स सी हियर फर्स्ट। ओके लेट्स सी, दिस इज अ सेंट्रोइडल एक्सिस। ये आप पहले देखो, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले प्योर टॉर्शन को, करेक्ट है दोस्तों। तो सपोज दिस इज आवर सर्कुलर मेंबर, एनी सर्कुलर स्ट्रक्चरल मेंबर, it may be shaft or not, correct। Like this. Now you can see here, this is centroidal axis, correct। Okay, now this is the cross section, is it clear? Okay, and its one end is fixed like this, correct, like this, its one end is fixed. Now if this member is subjected to an eccentric loading like this, correct, and this load can be represented like this, you can see here, correct. And similarly this is nothing but this force is called as, this is F, and this is also called as F, correct। और अगर मैं एक्सिस डिफाइन करूं दोस्तों, तो अब अकॉर्डिंग टू आवर रेफरेंस एक्सिस सिस्टम जो आज तक हम लोग फॉलो कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज जेड एक्सिस, एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्स एक्सिस, एंड सिमिलरली दिस इज कॉल्ड एज वाई एक्सिस, करेक्ट, दिस इज वाई एक्सिस। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हो, जो ये फोर्स F लग रहा है, दिस इज एक्चुअली एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, एंड जो अपर फाइबर में फोर्स लग रहा है, सपोज दिस इज नेम्ड एज ए बी,
दिस इज अपर फाइबर एंड दिस इज BC, करेक्ट। ये जो BC फाइबर में लग रहा है, सॉरी नॉट BC, दिस इज CD। तो अपर फाइबर में जो फोर्स लग रहा है वो आउट इनवर्ट टू द बोर्ड लग रहा है, और जो BCD फाइबर में फोर्स लग रहा है वो आउटवर्ड टू द बोर्ड लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, और इसको अगर हम क्रॉस सेक्शन में रिप्रेजेंट करें तो इट कैन बी लुकिंग लाइक दिस। इज इट क्लियर? नाउ यू कैन सी हियर दीज टू फोर्सेस आर एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंट्रॉइड, इस एक्सिस से बाहर की तरफ लग रहा है, और अवे फ्रॉम द सेंट्रॉइड हम कह सकते हैं दीज आर कॉल्ड एज इसेंट्रिक लोड। एंड व्हेनेवर वी हैव इसेंट्रिक लोड, then you can see here it can be looking like this, correct? And now you can see here this is nothing but this is F1, and अब मैं यहाँ पे z एक्सिस को डिलीट कर देता हूँ दोस्तों। Here I am going to write z, correct? And this is F2। और अब अगर मैं फोर्स AB फाइबर के फोर्स को शिफ्ट करूं तो तब देखो आप कैसा लगेगा ये। इट इज लुकिंग लाइक दिस। Here we have a force like this, correct? और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है दिस इज F1, this is F1 and this is F, and as we know that F1 is equal to F2 is equal to F, ऐसी कंडीशन है दोस्तों, yes or no? Now you can see, and the eccentricity between them, this is nothing but this is E by 2, तो ये eccentricity यहाँ पे दोस्तों E by 2। Now you can see here, whenever we have two equal and opposite force, then they will produce a couple, yes or no? इनकी वजह से क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे एक कपल आएगा, and this couple is nothing but this is force into perpendicular distance, that is E by 2, and if this is the direction of view, अगर दोस्तों ये डायरेक्शन ऑफ व्यू है, करेक्ट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज डायरेक्शन ऑफ व्यू, मतलब कहाँ से आप खड़े होके किधर साइड देख रहे हो। if this is the direction of view, then you can see here this couple is acting in clockwise direction, yes or no? This couple is clockwise couple, yes or no? ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्लॉकवाइज कपल। नाउ टेल मी कि जो कपल एक्ट होगा किस एक्सिस के अबाउट एक्ट होगा, तो ऑब्वियसली अगर मैं इस क्रॉस सेक्शन को देखूं तो आपको देखने को मिलेगा कि इस पॉइंट के परपेंडिकुलर जो बाहर निकलता हुआ एक्सिस है जो कि जेड एक्सिस कहलाएगा, उस एक्सिस के अबाउट लगेगा, यस और नो? यू कैन सी हियर दिस इज जेड एक्सिस, एंड इफ वी राइट एक्सिस फॉर दिस मेंबर, तो आप देख सकते हो जो जेड एक्सिस है दिस इज सेंट्रोइडल लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, और एक्स एंड वाई है दिस इज सेंट्रोइडल नॉर्मल एक्सिस है, करेक्ट है दोस्तों? तो जब भी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अबाउट कोई कपल लगता है तो उसे हम कह देते हैं दिस इज कॉल्ड एज ट्विस्टिंग कपल। तो ये फोर्स F और ये F1 दोनों कैंसिल आउट हो गए, और यहाँ पे हमें एक ट्विस्टिंग कपल दे दिए, दैट इज mz, एंड दिस इज इक्वल टू P into E by 2, F into E by 2 in clockwise direction, yes or no? करेक्ट। तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों हाउ टू कैलकुलेट दिस, हाउ टू शिफ्ट दिस लोड, yes or no? करेक्ट। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और हमें एक ऐसा कपल मिल गया, रिमेनिंग क्या बच गया, F2, करेक्ट है। एंड दिस F2 इज नथिंग बट दिस इज ट्रांसवर्स शियर लोड, और ये एक्ट हो रहा है इनवर्ड, इनवर्ड टू द बोर्ड, बोर्ड की अंदर की तरफ लग रहा है, यस और नो? करेक्ट है दोस्तों? या सिंपली अगर मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं तो इट कैन बी लुकिंग लाइक दिस इज कॉल्ड एज F2 and this is equal to F, yes or no? Now at this centroid, again if we consider two equal and opposite force like this, and in this case this is F3 and this is F4, तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो कि here we have F force and here we have F force, और इनके बीच का गैप कितना है, E by 2,
इसेंट्री E/2 है, यस और नो? तो सिंपली हम कह सकते हैं अगेन दे विल प्रोड्यूसेस अ कपल अबाउट सेम z एक्सिस एंड दिस इज f इंटू E/2 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम यही सेम डायरेक्शन ऑफ व्यू रखें तो यस और नो? ऐसा कपल लगेगा and again they will cancel out and they will produce a couple like this, and since this couple is acting about longitudinal axis, therefore this is called as twisting couple. Is it clear? तो दोस्तों ये F4 और F4 cancel out हो गया, remaining here we can get F3 that is transverse shear load, और ये लग रहा है outward to the board या white screen, ये जो आपको स्क्रीन दिख रही है बोर्ड दिख रहा है इसके बाहर की तरफ, तो सिंपली इसको मैं इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यस और नो? एंड दिस इज F3 एंड दिस इज इक्वल टू F, और आप देख सकते हो यहाँ पे कि हियर वी हैव F2 एंड हियर वी हैव F3, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ऐसा नो? क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं विद सेम मैग्नीट्यूड, यस और नो? करेक्ट है दोस्तों? तो दिस इज कैंसिल आउट विद दिस, और ये दोनों कपल यहाँ पे दोस्तों ऐड हो गए, एंड आफ्टर एडिशन ऑफ these two couples here we can write mz is equal to F into E, and this couple is acting in clockwise direction, yes or no? When we see from this direction, अगर आप इस डायरेक्शन से देखो तो करेक्ट है, तो ये क्या कहलाएगा? Fe. इज इट क्लियर? समझ में आ गया दोस्तों? अब देखो, अब अगर मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करूं, इस फिगर का अगर मैं यहाँ पे एक इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करूं, तो सिंपली आप देख सकते हो हियर वी हैव दिस काइंड ऑफ लोडिंग, this end is fixed, and here we have only a torque like this. Is it clear? Correct? And this is nothing but this is mz, and this is the direction of view. तो ये एक्टिव कपल है, तो इसके अगेंस्ट में दोस्तों यहाँ पे आप देखो इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे एक रिएक्टिव कपल एक्ट होगा, यस और नो? तो अदर देन दीज टू कपल्स देयर इज नो फोर्स, यस और नो? तो सिंपली अगर नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम देखें दोस्तों, मैं एक बार फिर से इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, लेट्स सी हियर। Correct, like this, and now you can see here, suppose this is centroidal axis, करेक्ट? और एक बात यहाँ ध्यान देना कि अगर आपका कपल कुछ इस तरीके से लग रहा हो, यू कैन सी हियर, इस ट्विस्टिंग कपल को हम कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं विथ डबल एरो, एंड सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्यू, ये जरूर फिक्स होगा। करेक्ट है? जब भी आप ट्विस्टिंग कपल को रिप्रेजेंट करोगे तो डायरेक्शन ऑफ व्यू फर्स्ट आपको फिक्स करना ही पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ व्यू। करेक्ट? अगर आप यहां से खड़े हुए देखो, तो अगर ये स्क्रू आप देख रहे हो, ये एरो आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, तो सिंपल सा आप एज्यूम करो कि सपोज हियर वी हैव अ स्क्रू ड्राइवर एंड स्क्रू, तो इफ वी रोटेट दिस स्क्रू इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन इट विल मूविंग अवे फ्रॉम द व्यूअर, यस और नो? अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट करें तो ये अवे फ्रॉम द व्यूअर मूव करेगा, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड एज क्लॉकवाइज कपल, ट्विस्टिंग कपल। करेक्ट है दोस्तों? और यहीं पे अगर एंटी क्लॉकवाइज कपल एक्ट हो रहा हो, एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग कपल, तो सिंपल से आप याद रखना कि जो एरो का डायरेक्शन होगा दैट इज टूवर्ड्स द व्यूअर होगा। अगर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूं तो ये मेरी तरफ वो आता हुआ दिखेगा, यस और नो? इसलिए हमने एरो कुछ इस तरीके से दिया है। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कपल को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बशर्ते यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ व्यू फिक्स होना चाहिए। अगर डायरेक्शन ऑफ व्यू मैं इसकी जगह पे लेफ्ट टू राइट कर दूं, करेक्ट है, तो यहाँ पे जो एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, और क्लॉकवाइज जो लग रहा है वो एंटी क्लॉक हो जाएगा। करेक्ट है दोस्तों? तो ये जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ व्यू कि आप देख कहां से रहे हो। इज इट क्लियर? वंस अगेन सपोज इफ वी फिक्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्यू, तो यहाँ पे जो कपल लग रहा है दोस्तों, ये दिस इज
क्लॉकवाइज कपल मीन्स इट इज अवे फ्रॉम द व्यूअर, यस और नो, क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी अवे फ्रॉम द व्यूअर एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, करेक्ट। एंड सिमिलरली इसका रिएक्टिव कपल कैसा एक्ट होगा, इट इज लुकिंग लाइक दिस, करेक्ट। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो कि दिस इज ट्विस्ट, दिस इज एम जेड, दिस इज इक्वल टू पी इंटू ए, और ये कपल है क्लॉकवाइज एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्यू, और यहाँ पे जो कपल है दिस इज एम जेड, अगेन दिस इज पी इंटू ए, और ये लग रहा है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, करेक्ट है दोस्तों। तो आई थिंक समझ में आ गया इसमें डायरेक्शन ऑफ व्यू, करेक्ट है। तो नाउ यू कैन सी इन दिस मेंबर हियर वी हैव ओनली टू कपल्स। तो अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊं कि हाउ टू डिफाइन अ प्योर ट्विस्टिंग कपल, तो यू कैन सी हियर a shaft or a member is said to be under pure torsion और इसी को हम ट्विस्टिंग कपल भी कहते हैं, प्योर टॉर्शन और ट्विस्टिंग कपल when it is subjected to two equal and opposite couples in a plane perpendicular to the longitudinal axis, of the shaft, or plane of the couple, और मैं प्लेन ऑफ द कपल की बात करूं दोस्तों, तो प्रीवियस स्लाइड से तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्स वाई प्लेन है दैट इज कॉल्ड एज प्लेन ऑफ द कपल, यस और नो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज एक्स वाई प्लेन ऑफ द कपल पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन और कपल एक्टिंग अबाउट longitudinal axis, yes or no, करेक्ट। तो इसे हम कह सकते हैं दिस इज द केस ऑफ प्योर ट्विस्टिंग कपल और प्योर टॉर्शन। और दोस्तों जो भी यहाँ पे हम स्टडी परफॉर्म करेंगे अंडर प्योर टॉर्शन परफॉर्म करेंगे, यस और नो। तो ये जो कंप्लीट हम स्टडी परफॉर्म करने वाले हैं दैट इज अंडर प्योर टॉर्शन, करेक्ट है। now now if we talk about some assumptions that can be used in the analysis of pure torsion, तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले assumptions used in
study of pure torsion. Then you can see here the first assumption says the material is homogeneous and isotropic. The material is homogeneous, and isotropic. First. Second, you can say shaft is assumed to be shaft is assumed to be circular and prismatic. Circular and prismatic. Correct. Number 3. Shaft is assumed to be under pure torsion. Pure torsion. Correct. Next, plane cross section. Plane cross section is remain plane before and after twisting. Before and after twisting, the plane cross section is remain plane. And the last one, that is material obeys Hooke's law. Material obeys Hooke's law. करेक्ट है दोस्तों. तो ये assumptions है while studying analysis of theory of pure torsion. Analysis of theory of pure torsion. करेक्ट. तो चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टडी करने वाले दोस्तों कि डेरिवेशन ऑफ प्योर टॉर्शन इक्वेशन. करेक्ट है. derivation of pure torsion इक्वेशन. या इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, देन हम लोग डेरिवेशन देखेंगे. करेक्ट है दोस्तों. तो सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दूं. करेक्ट है. देन उसके बाद स्टडी करते हैं. लेट्स सी. फर्स्ट हियर आई एम गोइंग टू अज्यूम अ शाफ्ट लाइक दिस. उससे पहले मैं एक सेंट्रोइडल एक्सिस ड्रॉ कर दूं दोस्तों. लेट्स सी हियर दिस इज द सेंट्रोइडल एक्सिस. Correct, like this. And here I am going to draw a shaft. Correct, this is our shaft. And in this shaft, first here we consider a fiber. You can see at a radius of r. यहाँ पे एक हम फाइबर कंसिडर करेंगे दोस्तों at extreme end. You can see here at a radius of r. Correct. And you can see the one end of the shaft is fixed like this. करेक्ट है दोस्तों. एक एंड इसके हम इस एक एंड को हम क्या कर देते हैं, फिक्स. नाउ लेट्स से सपोज दिस इज O1, देन दिस इज O2, एंड सपोज दिस इज A एंड दिस इज B.
करेक्ट। तो यहाँ जो फाइबर है दोस्तों, दिस इज ए बी फाइबर एट एक्सट्रीम डायमीटर। अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन शो करूँ तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से होगा ये। एंड यहाँ पे हम ये भी एज्यूम करते हैं कि दिस शाफ्ट इज मेड अप ऑफ, दिस शाफ्ट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट होलो सिलेंडर विथ वेरिंग डायमीटर, ये सर नो। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से, ऐसे बहुत सारे होलो सिलेंडर से मिलके बना होगा दोस्तों ये। इज इट क्लियर? लाइक दिस। और हम लोग यहाँ पे जो ये फाइबर कंसीडर कर रहे हैं, यू कैन सी हियर इट इज कंसीडर एट दिस पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट पे हम कंसीडर करें तो सपोज दिस इज ए कॉमा बी। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमें दोनों कोइंसाइड करते हुए देखेंगे एट एक्सट्रीम फाइबर, yes or no? And this is the situation before loading without any torque, yes or no? Now if we can apply a torque like this, अगर हम इसमें एक टॉर्क अप्लाई कर दे दोस्तों लाइक दिस टी, और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एम जेड से, करेक्ट है। अगर ऐसा एक टॉर्क अप्लाई कर दे देन व्हाट विल हैपन, ड्यू टू दिस टॉर्क दिस फाइबर में डिफॉर्म लाइक दिस, करेक्ट है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे ए एंड जो है दिस इज रिमेन फिक्स, ए एंड इज फिक्स, देयरफॉर ए डैश एंड ए बोथ आर लाई ऑन सेम पॉइंट, but this b end is free, and when we apply this torque t then this b end may shift from this position to this position, and this is called as b prime, yes or no? करेक्ट है। तो आप यहाँ पे देखो एक ऐसा आर्क बन रहा है क्या, यू कैन सी हियर, हियर वी कैन गेट एन आर्क, इज इट क्लियर? एंड यू कैन सी हियर दिस एंगल, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं, दिस एंगल इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज थीटा एंगल, and this theta is nothing but this is angle of twist, and similarly this angle is nothing but this is called as phi, that is shear angle, yes or no? This is called as phi or shear angle, is it clear? कुछ इस तरीके से होगा दोस्तों। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो, यहाँ पे मैं हेडिंग लिख देता हूँ एनालिसिस ऑफ प्योर टॉर्सन, करेक्ट। नाउ यू कैन सी हियर इफ वी टॉक अबाउट आर्क बी बी प्राइम, इस आर्क की अगर मैं बात करूं तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इफ द लेंथ ऑफ द शाफ्ट इज एल एंड द रेडियस ऑफ द शाफ्ट इज आर, तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, एल टाइम्स ऑफ फाई इज इक्वल टू कैपिटल आर टाइम्स ऑफ थीटा, ये आर नो? ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, yes or no? And here you can see the phi is nothing but this is called as shear angle, या shear strain कह सकते हो, shear strain in degree, करेक्ट। एंड थीटा, इसी को हम shear angle भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। एंड थीटा इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट और ट्विस्ट एंगल, और ये भी होगा दोस्तों इन डिग्री, करेक्ट। तो आई थिंक ये समझ में आया कि क्या हो रहा है यहाँ पे, before loading the fiber is AB and after loading the fiber is A dash B dash, ये सानो। तो अगर मैं इस फाइबर को सिर्फ बाहर निकाल के लाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे इट इज लुकिंग लाइक दिस, इट कैन बी सिंपली लुकिंग लाइक दिस, ये सानो। This is the situation before twisting, and after twisting you can see here it is looking like this, correct? And you can see here this is O1 and this is O2 and this is A comma A prime, and this is B and this is B prime, and this angle is called as theta and this angle is called as phi, yes or no? कुछ इस तरीके से दोस्तों हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे हो सर ये दुनिया भर का ज्ञान क्यों दे रहे हो, तो देखो सिंपल सी बात है
यहाँ पे फाई एंड थीटा तो देख लिया, अब हमें देखना है कि थीटा और फाई का वेरिएशन कैसे हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस एंड लेंथ। करेक्ट है, इनके इफेक्ट्स को हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। करेक्ट है, तो देखो कैसे, तो यहाँ पे दो केसेस मिलेंगे, वन बाई वन केस हम लोग स्टडी करेंगे। करेक्ट है, तो फर्स्ट हम लोग केस स्टडी करते हैं कि सपोज द effect of theta and the effect of radius, change in radius when length is constant on theta and phi। करेक्ट, तो हमें सिंपल से पता करना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन रेडियस ऑन थीटा एंड फाई, या सिंपली ऐसा थोड़ा सेंटेंस में इसको चेंज कर रहा हूं, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन रेडियस ऑन theta and phi when length is constant। करेक्ट है, जब लेंथ कांस्टेंट है तो रेडियस का वेरिएशन थीटा और फाई में क्या पड़ने वाला है ये हम चेक करने वाले। करेक्ट है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले मैं उस फिगर को बाहर लेके आता हूं। लेट्स सी हियर इट इज लुकिंग लाइक दिस। करेक्ट, और वन मोर थिंग, एक बार ध्यान रखना, यहाँ पे जो टॉर्क एक्ट हो रहा है वो भी सेम है, टॉर्क हम चेंज नहीं कर रहे हैं। करेक्ट है दोस्तों, तो देखो इनिशियल जो कंडीशन है हमें कुछ इस तरीके से मिलेगी, यस और नो। This is initial condition. This is O1 and this is O2, correct? And this is A comma A prime, and this is B comma, this is B and B prime. Is it clear? And this is radius R and this is length L. अब कह रहे हैं कि if we change the radius, अगर हम radius change कर दें, रेडियस चेंज मतलब सपोज अगर मैं यहाँ पे कहीं रेडियस कंसिडर कर लूँ एट स्मॉल रेडियस आर, तो इस केस में थीटा और फाई में क्या चेंज होने वाला है इसे हमें यहाँ पे चेक करना है। करेक्ट है दोस्तों, तो चलो मैं इस रेडियस पे एक फाइबर कंसिडर कर लूँ लाइक दिस, और यहाँ पे आप देखो तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, यस और नो बोलो। एंड सपोज दिस इज नथिंग बट दिस इज A1। करेक्ट, और यहाँ पे कह देता हूँ A1 एंड A1 प्राइम, और ये क्या है, सपोज दिस इज B1, this is B1 and this is B1 prime। करेक्ट, ऐसे लिख सकते हैं यार दोस्तों। नाउ इन दिस केस यू कैन सी when we change the radius, when it is subjected to torque T, when we change the radius, then जैसे हम रेडियस चेंज करते हैं दोस्तों, तो आप देखने को यहाँ पे मिला थीटा इज रिमेन सेम। अब चाहे बी डैश के रिस्पेक्ट में देखो या बी वन डैश के रिस्पेक्ट में, थीटा ये रिमेन कांस्टेंट मिला, ये सानो। यहाँ से एक कंक्लूजन मिल गया कि थीटा इज कांस्टेंट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन रेडियस, यस और नो, चेंज इन रेडियस। करेक्ट, थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन रेडियस के बदलने से एंगल ऑफ ट्विस्ट में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, यस और नो। मतलब एट ए गिवन क्रॉस सेक्शन द थीटा इज रिमेन सेम, यस और नो। नाउ बट सी here we know that b1 prime, arc of b1 prime is less than b prime, yes or no। करेक्ट है, और ये b1 प्राइम की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखूं दोस्तों तो क्या आएगा ये, दिस कैन बी रिटन एज स्मॉल r टाइम्स ऑफ थीटा। करेक्ट है, अब इसकी वैल्यू ड्यू टू चेंज इन रेडियस, लेंथ को रिड्यूस करने से सॉरी रेडियस को रिड्यूस करने से b1 आर्क लेंथ रिड्यूस हो गई, तो दोस्तों लेंथ तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो अल्टीमेटली फाई को चेंज होना पड़ेगा कि नहीं, यस और नो। तो सिंपली हम लिख सकते हैं r थीटा इज इक्वल टू l फाई डैश। देयरफॉर here from this equation we can conclude that the phi is directly proportional to radius, phi is directly proportional to radius।
और जब फाइव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है तो हम सिंपली कह सकते हैं गामा इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू रेडियस या टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। करेक्ट है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला दोस्तों, यहां से सिंपल से हम कंक्लूजन लिख सकते हैं कि व्हेन वी चेंज द रेडियस, करेक्ट है। यहाँ पे कंक्लूजन अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, shear एंगल और shear strain और shear stress is directly proportional directly proportional to is directly proportional to radius, but angle of twist is independent of change in radius। यस आर नो। ये स्टेटमेंट याद रखोगे कि चाहे वो शियर एंगल हो या शियर स्ट्रेन हो या शियर स्ट्रेस हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रेडियस के, एंड इट इज एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन रेडियस। यस आर नो। यहां से ये कंक्लूजन निकला कि whenever we change the radius the shear angle will be changes but the angle of twist is remain constant। yes or no। सिमिलरली सेकंड केस है यहाँ पे दोस्तों, आप देख सकते हो the effect of change in length on theta and phi when radius r is constant। yes or no। तो चलें इसके बारे में देखें क्या है ये। करेक्ट। तो once again you can see here, ये इनिशियल कंडीशन है दोस्तों, एट लेंथ कैपिटल एन एंड एट रेडियस कैपिटल आर। यस आर नो। करेक्ट। और यहाँ पे जो टॉर्क लग रहा है इट इज लुकिंग लाइक दिस टॉर्क टी। करेक्ट। okay, now let's say this is O1 and this is O2। correct। and this is A prime comma A and A prime। correct। and this is B and this is B prime। is it clear? and this angle is nothing but this is theta and this angle is nothing but this is phi। yes or no। correct। now in this case if we change the length, दोस्तों अब यहाँ पे हम length change कर रहे हैं, it means suppose here we see at a length small l, अगर small l पे हम लोग देखें यहाँ पे ये arc length देखो क्या हो गया। suppose this is B2 and this is B2 dash। करेक्ट। बट अभी भी फर्स्ट जो ए डैश प्राइम है वो तो फिक्स्ड है। यस आर नो। एंड सपोज दिस इज ओ। करेक्ट। एंड सपोज दिस लेंथ इज स्मॉल एल एंड द टोटल लेंथ इज कैपिटल एल।
Is it clear? Like this. Correct है दोस्तों, and this is the capital radius r. Correct. Now you can see, although here we change the length, then the phi is remain same. Yes or no? Phi आपको देखो same ही मिल रहा है. Yes or no? But this arc length you can see here, this BB dash, B2 dash is smaller than B2 dash is smaller than BB dash, and therefore you can see here B2 dash, arc length B2 dash, it can be written as, क्या लिख सकते हैं दोस्तों? This is capital R, तो सिंपल से हम लिख सकते हैं L टाइम्स ऑफ फाइव. यस आर नो? और आप देखो यहाँ पे लेंथ रिड्यूस हुआ है, इसकी वजह से आर्क लेंथ, जो आर्क है वो रिड्यूस हो गया, और आर्क रिड्यूस हो गया दोस्तों, तो इसको हम कंपनसेट कर सकते हैं बाय चेंजिंग द एंगल, बिकॉज रेडियस इज रिमेन सेम. तो हम सिंपली लिख सकते हैं हियर वी कैन गेट थीटा डैश. यस आर नो? तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि जो फाई है, दिस इज फाई, या सिंपली आप देखो फाई जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, बट थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. यहां से कंक्लूजन निकला, मतलब एंगल ऑफ ट्विस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. तो यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला? सिंपली आप लिख सकते हो फ्रॉम दिस डिस्कशन, it can be concluded that the angle of twist, sorry, yeah, the angle of twist is directly proportional to radius, but the angle of, yes, the shear angle or shear strain or shear stress is directly, it is independent of change in length. Yes or no? तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो आपका शेयर एंगल है या शेयर स्ट्रेन है या शेयर स्ट्रेस है, ये लेंथ के चेंज होने पे चेंज नहीं होते. अगर मैं सपोज, अगर हम शाफ्ट की बात करें, देखो यू कैन सी, अगर इस फाइबर में स्ट्रेस यहाँ पे टाउ है, तो थ्रू आउट द लेंथ आप कहीं भी चले जाओ आपको सेम shear stress मिलने वाला है. yes or no? It will never be change. yes or no? करेक्ट है. बट एंगल ऑफ ट्विस्ट जो होगा दोस्तों वो डिफरेंट मिलने वाला है. इज इट क्लियर? अगर हम यहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट की बात करें, तो एंगल ऑफ ट्विस्ट एट दिस पॉइंट हियर वी हैव थीटा, एंड एज वी चेंज द लेंथ जैसे हमने रिड्यूस किया, तो यहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी यहाँ पे मैंने रेडियस लिखा है, दिस इज नॉट रेडियस, दिस इज लेंथ. इज इट क्लियर? थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. इज इट क्लियर? तो समझ में आ गया दोस्तों? तो shear angle is directly proportional to length, but shear strain or shear angle is independent of length. Is it clear? ये first analysis हुआ. अब now we can derive pure torsion equation. ये सारा अब हम लोग इस पोजीशन में है कि हम pure torsion equation को derive कर सकते हैं. तो let's see here the derivation of pure torsion equation.
डेरिवेशन ऑफ प्योर टॉर्शन इक्वेशन। करेक्ट है दोस्तों। तो चलिए इसको डेराइव करते हैं फटाफट। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे एज वी नो दैट ये फिगर ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया था। यस आर नो? यहीं से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको याद दिला दूं कि बेंडिंग इक्वेशन जब हमने डेराइव किया था तो हमने सिंपली क्या किया था, वी कंसीडर अ फाइबर, हमने एक फाइबर कंसीडर किया था और उस फाइबर में हमने स्ट्रेन फाइंड आउट किया था और वंस वी गेट स्ट्रेन देन वी अप्लाई जस्ट हुक्स लॉ, देन वी कैन फाइंड आउट द स्ट्रेस। यस आर नो? तो यहाँ पे भी वही सेम यहाँ पे करने वाले हम कि ये जो हमने फाइबर कंसीडर किया है दैट इज ए बी फाइबर, दिस इज ए कॉमा ए प्राइम एंड दिस इज बी एंड दिस इज बी प्राइम। करेक्ट। और ये क्यों ऐसे लिख देता हूँ, बिकॉज ये जो एंड है दिस इज फिक्स्ड एंड, जो O1 एंड है ये फिक्स्ड है और O2 यहाँ पे फ्री है एंड एट दिस फ्री एंड हियर वी हैव अ टॉर्क टी लाइक दिस, यहाँ पे एक टॉर्क टी लग रहा है। करेक्ट है दोस्तों। एंड यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, लेट्स से दिस इज एंगल थीटा एंड दिस इज हियर एंगल फाई। करेक्ट। तो दोस्तों अगर मैं ए बी फाइबर में सिंपली यहाँ पे लिखूं स्ट्रेन इंड्यूस्ड या शियर स्ट्रेन, ऐसे लिखता हूँ, स्ट्रेन ना लिख के मैं सिंपली लिखूं शियर स्ट्रेन इंड्यूस्ड इन द फाइबर ए बी। तो ये सिंपली क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम बी बी प्राइम आर्क। यहां से अगर मैं लिखूं तो सिंपली क्या लिख सकता हूं, पाई टाइम्स ऑफ एल, जब इसकी लेंथ कैपिटल एल है एंड दिस इज रेडियस कैपिटल आर, देन दिस इज इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ थीटा। यस आर नो? तो सिंपली फाई क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इट कैन बी रिटन एज आर थीटा बाई एल। यस आर नो? यहां से हमें मिल गया ये शियर एंगल और ये किस में होगा दोस्तों, इन डिग्री, ये इन डिग्री में होगा। नाउ इफ यू वांट टू राइट दिस थिंग इन रेडियन देन सिंपली इट कैन बी रिटन एज गामा, दिस इज इक्वल टू आर थीटा बाई एल और यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज शियर स्ट्रेन इन रेडियन। यस आर नो? ऐसे लिख सकते हैं क्या? नाउ यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया, गामा इज इक्वल टू आर थीटा बाई एल फ्रॉम, मैंने कहा था ना हुक्स लॉ वैलिड होगा, हमने ये अजम्पशन लिया था। फ्रॉम हुक्स लॉ टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा, देयरफॉर टाउ कैन बी रिटन एज जी टाइम्स ऑफ गामा। यस आर नो? तो गामा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं दोस्तों, टाउ बाई जी। यस आर नो? ऐसे लिख सकते हैं क्या, वेयर जी इज अ शियर मॉडुलस। यस आर नो? और सपोज अगर मैं कह दूं सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, तो सिंपली हियर वी कैन राइट, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ दोस्तों, लेट्स सी हियर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सिंपली क्या लिख सकते हैं, टाउ बाई जी इज इक्वल टू आर थीटा बाई एल। तो सिंपली अगर इसको रीअरेंज करूं तो क्या होगा, ये टाउ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। यस आर नो? ये टर्म आ गया एंड दिस इज, ये क्या कहलाएगा दोस्तों, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्योर टॉर्शन इक्वेशन। यस आर नो? करेक्ट है दोस्तों, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्योर टॉर्शन इक्वेशन। टाउ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल and suppose it can be written as this equation number 1 या इक्वेशन ए कह देता हूं। करेक्ट है, दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ प्योर टॉर्शन इक्वेशन। नेक्स्ट अब यहां पे हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट जैसे हमने बेंडिंग के केस में किया था, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो देखो क्या होगा ये, सपोज दिस इज योर क्रॉस सेक्शन। करेक्ट।
ये शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन है दोस्तों, and as we know that this shaft is made up of infinite number of hollow cylinders. करेक्ट है दोस्तों, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ होलो सिलेंडर से मिलके बनाते हैं। यहाँ पे मैं दो ही बना देता हूँ, ठीक है दोस्तों। And now if I draw the centroidal axis, then it can be drawn like this. This is centroidal longitudinal axis. Sorry, this is centroidal transverse axis. Is it clear? Like this. Now, if this is the fiber, ये जो ब्राउन कलर का ये हमने एक सर्कल कंसिडर किया है, this is the fiber, ये होलो फाइबर है। Is it clear? Correct? And चलो एक और यहाँ पे सर्कल लिख लेते हैं। करेक्ट है दोस्तों, कुछ इस तरीके का एक हम फाइबर कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे जो ब्राउन कलर का दिख रहा है, दिस इज द फाइबर। करेक्ट, और इसका एरिया क्या होगा? सपोज दिस फाइबर इज लाई ऑन एट अ रेडियस ऑफ आर, करेक्ट। ये जो फाइबर है, इट इज लाई ऑन एट अ रेडियस ऑफ आर and its thickness is nothing but this is dr. Is it clear? And in this fiber here we have a force like this, ऐसा एक force लग रहा है, and this force is nothing but this is elementary force because this force is acting at the element, ऐसा no, and this is small r and this is dr, and this force is nothing but this is df force. करेक्ट, और बेटर है मैं इसके डायरेक्शन को अगर यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं, this is df force and this is r and this is dr. अब आप सोचोगे सर ने फोर्स का डायरेक्शन ऐसा क्यों रिप्रेजेंट किया, तो आप देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में जब मैंने आपको बताया था दोस्तों प्योर टॉर्शन के केस में फर्स्ट स्लाइड में, यहाँ पे ये अप्लाइड फोर्स था जिसके वजह से टॉर्क आ रहा है, तो जो रेजिस्टिव फोर्स होगा इसके ठीक अपोजिट एक्ट होगा इस डायरेक्शन में, यस आर नो। इसलिए यहाँ पे जो मैंने फोर्स अप्लाई किया है, दिस इज रेजिस्टिव फोर्स, दैट इज df विच इज एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, यस आर नो। और अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं, तो इस एलिमेंट को आप देख सकते हो, इस एलिमेंट का एरिया क्या होगा दोस्तों? एरिया ऑफ दिस एलिमेंट दैट इज dA, इट कैन बी रिटन एज, अगर मैं यहां से इसको कट कर दूं और कट करने के बाद इसको स्प्रेड कर दूं, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा दोस्तों, यस आर नो। ये कंप्लीट एलिमेंट and area of this element is nothing but this is thickness is dr and length is 2 pi r, yes or no। तो एरिया क्या हो जाएगा? सिंपल सा 2 pi r into dr, ऐसे लिख सकते हैं क्या? दिस इज द एरिया ऑफ दिस एलिमेंट 2 pi r into dr। तो सिंपली अगर हम यहाँ पे देखें कि रेजिस्टिव टॉर्क, रेजिस्टिव मूवमेंट और रेजिस्टिव टॉर्क या dmz कैन बी रिटन एज क्या होगा दोस्तों? df into r, yes, इस तरीके से लिख सकते हैं df into r। इस फोर्स से यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी होगी? r, yes or no। and instead of df here we can write tau into da into r, yes or no। और tau की जगह क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम प्रीवियस इक्वेशन, फ्रॉम दिस इक्वेशन tau can be written as small r times of g theta by l, yes or no। इसकी वैल्यू अगर पुट कर दो तो क्या आएगा? ये g theta by l
इंटू स्मॉल आर इंटू डी ए इंटू आर। और अगर मैं इसको रीअरेंज करो तो दोस्तों ऐसे लिख सकते हैं क्या, जी थीटा बाई एल इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर, एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज डी एम जेड। यस आर नो? करेक्ट, ऐसे लिख सकते हैं क्या दोस्तों? नाउ इफ वी कैन इंटीग्रेट दिस इक्वेशन लाइक दिस, then this term is nothing but this is called as second moment of area. Is it clear? Second moment of area. And here we know that second moment of area about longitudinal axis, this is nothing but this is called as J, or simply it can be written as IZZ. करेक्ट, इसे क्या कहते हैं दोस्तों हम? दिस इज कॉल्ड एज पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और ऑब्वियसली यहाँ पे आप देखो, ये जो एक्सिस रिप्रेजेंट किए, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। तो एक्स वाई प्लेन जब भी रोटेट होगा, वो जेड एक्सिस के अबाउट ही रोटेट होगा दोस्तों। तो जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो भी जेड एक्सिस के अबाउट आएगा, एंड जेड एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सिंपल हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, दैट इज कॉल्ड एज पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सिंपली यहां से इक्वेशन क्या आ गया, एम जेड इज नथिंग बट दिस इज जी थीटा बाई एल इंटू, इधर इट कैन बी जे रिटन एस जे और आई जेड। ये सानो, तो मैं यहाँ पे जे लिखता हूँ दोस्तों। तो एम जेड बाई जे इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, ये इट कैन बी रिटन एस जी थीटा बाई एल, या एम जेड की जगह हम लिख सकते हैं टॉर्क टी। करेक्ट, इसे हम mz से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड इट कैन आल्सो बी रिटन एज t। तो mz और टॉर्क t बाई j, दिस इज इक्वल टू g थीटा बाई l, एंड दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ दिस प्योर टॉर्शन इक्वेशन। और इसे मैं कह देता हूं सपोज दिस इज b। तो आप सिंपली कह सकते हो दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन a एंड b। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन a है क्या, यू कैन सी हियर equation A is nothing but this can be written as tau by r is equal to g theta by l. Yes or no? तो सिंपली क्या आ गया ये, t by j is equal to tau by r equal to g theta by l. करेक्ट, तो ये इक्वेशन मिल गया, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज प्योर टॉर्शन इक्वेशन। अब दोस्तों एक बार और मैं बता दूं आपको कि इक्वेशन डराइव करना कोई बड़ा टास्क नहीं। मैं बार बार ये कहता हूँ कि इक्वेशन डराइव कर लेना इज नॉट अ बिग थिंग, बट इक्वेशन डराइव करते वक्त क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए हमने, कैसे हमने उसको अंडरस्टैंड किया है, उसको समझना ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब रियल प्रॉब्लम में आप इस फॉर्मूलाज को अप्लाई करोगे तो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। इज इट क्लियर? करेक्ट, तो यहाँ पे इक्वेशन कुछ इस तरीके से मिला है, यस और नो? t by j is equal to tau by r is equal to g theta by l. This is called as pure torsion equation. Is it clear? Now let's see once again एनालिसिस ऑफ प्योर टॉर्शन इक्वेशन। अब हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है दोस्तों? एनालिसिस ऑफ प्योर टॉर्शन इक्वेशन। एनालिसिस ऑफ प्योर टॉर्शन इक्वेशन। अब देखो प्योर टॉर्शन इक्वेशन क्या हमने डिराइव किया दोस्तों, यू कैन सी हियर t बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। करेक्ट, कुछ इस तरीके से हमने इक्वेशन डिराइव किया। और अब आप देखो यहाँ पे इस इक्वेशन से दोस्तों, जैसे हमने बेंडिंग एनालिसिस किया था वही सेम मैनर से हम इसकी एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे 3 ग्रुप्स बनेंगे, दिस इज ग्रुप 1, दिस इज फर्स्ट केस, एंड दिस इज सेकेंड केस। और आपको पता होना चाहिए ईच एंड एवरी ग्रुप की कैसे हमें इनको अप्लाई करना है, एंड दिस इज थर्ड केस। ऐसे 3 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होंगे दोस्तों इस 3 इक्वेशन से, यस आर नो? t by j is equal to tau by r is equal to g theta by l, and t by j is equal to g theta by l.
ये सानो। तो अब अगर मैं थोड़ा सा डिजाइन क्राइटेरिया की बात करूं दोस्तों, करेक्ट है, डिजाइन क्राइटेरिया की देखो यहाँ पे क्या हम बात कर सकते हैं। डिजाइन क्राइटेरिया, अगर मैं डिजाइन क्राइटेरिया की बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास दो डिजाइन क्राइटेरिया होगा अगेन, दैट इज स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, और दूसरा होगा दोस्तों रिजिडिटी क्राइटेरिया। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया एंड रिजिडिटी क्राइटेरिया। और स्ट्रेंथ क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास वंस अगेन हम दो क्राइटेरिया और पढ़ेंगे यहाँ पे, सेल्फ वेट क्राइटेरिया, सॉरी, गिवन वेट क्राइटेरिया, और दूसरा होगा गिवन स्पेस क्राइटेरिया। करेक्ट है दोस्तों। अगर जब हमारे पास वेट कंस्ट्रेंट होगा, करेक्ट है दोस्तों, वेन एवर वी हैव वेट एज ए कंस्ट्रेंट, सेल्फ वेट is a constraint, then we use this criteria, and whenever we have space is a constraint, space is a constraint। कई जगह हमें ऐसे शाफ्ट लगाने होते हैं जहां पे स्पेस हमारा फिक्स होता है, स्पेस को हम वेरी नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू दैट क्राइटेरिया वी यूज गिवन स्पेस क्राइटेरिया, एंड व्हेनेवर वी हैव वेट क्राइटेरिया, लाइक अगर सपोज स्पेस क्राफ्ट के लिए अगर आप शाफ्ट डिजाइन कर रहे हो तो वहां पे हमारा मेन कंसेंट क्या है, द वेट शुड बी एज लो एज पॉसिबल, यस और नो। तो उसके केस में हम गिवन वेट क्राइटेरिया को यूज करते हैं। करेक्ट है दोस्तों। तो किसी भी शाफ्ट की डिजाइन करूंगा तो इन दोनों क्राइटेरिया के बेसिस पे डिजाइन करूंगा। और स्ट्रेंथ बेसिस क्राइटेरिया पे अगर मैं बात करूं तो टाउ इंड्यूस शुड बी लेस देन इक्वल टू टाउ परमिसिबल होना चाहिए फॉर सेफ डिजाइन। करेक्ट है दोस्तों। और वहीं पे अगर गिवन मैं सॉरी रिजिडिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो थीटा इंड्यूस्ड इंड्यूस्ड शुड बी लेस देन इक्वल टू थीटा परमिसिबल होना चाहिए फॉर सेफ डिजाइन। करेक्ट है दोस्तों। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्राइटेरिया वी कैन डिजाइन द शाफ्ट, यस और नो। करेक्ट। ओके। चलिए नेक्स्ट आप बात करते हैं केस वन की। करेक्ट है दोस्तों। तो केस वन जो है हमारे पास, देखो केस वन है हमारे पास, दैट इज टाउ बाई आर इक्वल टू टी बाई जे। करेक्ट। तो सिंपली हम यहाँ टाउ का लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू टी बाई जे इंटू आर। एंड नाउ यू कैन सी सपोज वी हैव अ शाफ्ट like this, हमारे पास कोई एक शाफ्ट है दोस्तों कुछ इस तरीके से, and suppose this is the cross section। करेक्ट, दिस इज द शाफ्ट।
cross section. Is it clear? And as we know that this shaft is made up of infinite hollow cylinder with varying diameter. Yes or no? Infinite hollow cylinder से मिलके बना है with varying diameter. Is it clear? कुछ इस तरीके से शाफ्ट बना है. तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे the cross section of the shaft is remain constant throughout the length. यहाँ पे शाफ्ट का जो क्रॉस सेक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है. इट इज रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ. इज इट क्लियर? करेक्ट है दोस्तों. कुछ इस तरीके से यहाँ पे शाफ्ट बना हुआ है. एंड द टॉर्क इज ऑल्सो कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ. यहाँ पे ये जो टॉर्क एक्ट हो रहा है दिस इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ. इसका मतलब है ना तो टॉर्क चेंज हो रहा है ना जे चेंज हो रहा है. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो टाउ है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है. और ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो शियर स्ट्रेस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है. ये सार नो. तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन शो करूँ दोस्तों तो कुछ इस तरीके से शो कर सकता हूँ. लेट्स सी हियर इट इज लुकिंग लाइक दिस. दिस इज शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन. ऐसा नो. और अगर मैं इस फाइबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ तो थ्रू आउट द फाइबर थ्रू आउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द फाइबर हियर वी हैव सेम स्ट्रेस. आप कहीं भी चले जाओ. एंड सिमिलरली अगर मैं इस फाइबर की इटसेल्फ एक्सट्रीम फाइबर की बात करूँ तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेस रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ पे भी सेम वही स्ट्रेस आएगा जो ऊपर वाले फाइबर में आया था. सेम यहाँ वही सेम स्ट्रेस आएगा. ये सार नो. सेम स्ट्रेस इधर आएगा. तो दोस्तों आप कहीं भी चले जाओ उस पर्टिकुलर फाइबर के सरकमफ्रेंस में throughout the circumference we can get same uniform stress. is it clear? करेक्ट है. जब सब जगह सेम लग रहा है तो हर जगह इसको रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है. इसलिए दोस्तों हमने सिर्फ यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किया है. इज इट क्लियर? करेक्ट. तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि व्हाई वी रिप्रेजेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दिस. एंड सिंस दिस इज shear stress, yes or no, this is shear stress, that's why it is represented in क्रॉस सेक्शनल प्लेन. yes or no, इसको हमने क्रॉस सेक्शनल प्लेन में रिप्रेजेंट किया है. इज इट क्लियर? तो आई थिंक समझ में आ गया दोस्तों why it is represented in cross sectional plane. Because this is shear stress and shear stress is always acting parallel to the cross section. Is it clear? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज टाउ मैक्स. ये सार नो. तो सिंपली आप देख सकते हो टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस. तो सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हो कि shear stress at neutral shear stress at top fiber where r is equal to r max. और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों ये टाउ मैक्स. सिमिलरली इफ वी राइट टाउ एट न्यूट्रल फाइबर वेयर आर इज इक्वल टू जीरो जीरो रेडियस देन हियर वी कैन गेट जीरो शियर स्ट्रेस. यस आर नो. करेक्ट. तो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा. यस आर नो दोस्तों. तो आई थिंक समझ में आ गया हाउ टू रिप्रेजेंट द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन. एंड दिस इज लीनियर. ये जो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या हुआ दोस्तों? दिस इज लीनियर. इज इट क्लियर? करेक्ट. ये तो पहला टास्क हो गया. अब नेक्स्ट टास्क देखो. जैसे हमने बताया कि जो टाउ है दिस इज टी बाई जे इंटू आर. तो सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टी बाई जे बाई आर. ये सानो. और नाउ यू कैन सी हियर एक यहाँ पे टर्म आता है दैट इज जेड पी. एंड दिस जेड पी इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज पोलर सेक्शन मॉडुलस. polar section modulus. And this polar section modulus is nothing but this is called as a by r. yes or no. और अगर मैं इनकी वैल्यू पुट कर दूं इफ दिस शाफ्ट इज हैविंग डायमीटर कैपिटल डी. अगर इस शाफ्ट का डायमीटर दोस्तों कैपिटल डी है करेक्ट है तो सिंपली जे क्या ले सकते हैं? जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज पाई बाई 32 डी टू द पावर 4. yes or no. पाई बाई 32 डी टू द पावर 4. और यहाँ पे r क्या आएगा दोस्तों? r इज नथिंग बट दिस इज d बाई 2. अब इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो क्या आएगा? ये पाई बाई 32 d टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई d बाई 2. तो जेड पी क्या आएगा दोस्तों? जेड पी इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज
5/16 डी क्यूब। तो कुछ इस तरीके से आप जेडपी कैलकुलेट कर सकते हो। एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज कॉल्ड एज पोलर सेक्शन मॉडुलस। पोलर सेक्शन मॉडुलस फॉर सॉलिड शाफ्ट। करेक्ट है दोस्तों। सॉलिड शाफ्ट के लिए पोलर सेक्शन मॉडुलस का रिलेशन कुछ इस तरीके से होगा, 5/16 डी क्यूब। तो टाउ क्या आ गया दोस्तों? टाउ इज नथिंग बट टाउ इज इट कैन बी रिटन एज टी बाई जेड पी। टी बाई जेड पी। और इस टी बाई जेड पी से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं दोस्तों? फ्रॉम दिस इक्वेशन we can conclude that the shaft, as the shaft is having higher ZP, करेक्ट है, ZP जितना ज्यादा होगा शाफ्ट का, that is shear stress induced, it should be low, yes or no? और shear stress induced अगर कम हुआ तो चांसेस ऑफ फेलियर भी कम होगा। तो यहां से हम सिंपली कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर सेफ डिजाइन ऑफ शाफ्ट, फॉर सेफ डिजाइन of shaft, ZP should be as high as possible। क्या होना चाहिए? ZP should be as high as possible, तभी आपका शाफ्ट क्या होगा? सेफ होगा, ऐसा नो। यहां से एक कंक्लूजन निकला, करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, करेक्ट है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूं सॉलिड शाफ्ट, फिर यहाँ पे लिखता हूँ होलो शाफ्ट, या ऐसा उल्टा कर देता हूँ। Here I am going to write hollow shaft, and here I am going to write solid shaft. Correct, like this. Okay. Now first case, that is hollow shaft. So let's see here. First here I am going to represent solid shaft, sorry, hollow shaft, like this. And this is solid shaft. Is it clear? Now you can see here, suppose this is di by 2 and this is d naught by 2. Half of the outer diameter and this is half of the inner diameter. And this is d by 2. Correct? And this is solid shaft. Now if we can write J, polar moment of inertia for hollow shaft, then it can be written as pi by 32 d naught to the power 4 minus di to the power 4. Yes or no? कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों। This is J. Is it clear? And now if we can write pi by 32 d naught to the power 4 को कॉमन ले लिया जाए तो ये बनेगा 1 माइनस di by t naught to the power 4। कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं क्या दोस्तों? Like this.
and since di by t naught is a constant value, therefore it can be considered as a constant, that is k, and this is nothing but this is the ratio of di by t naught. And one more thing, यहाँ पे जो r max होगा, this can be written as t naught by 2. और यहीं पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर r max क्या लिया जाए, तो ऑब्वियसली आप सेंटर से देखो एक्सट्रीम फाइबर में r क्या है, इज इट क्लियर, एक्सट्रीम फाइबर में r कहाँ पे है, उसी r को हम कंसिडर करेंगे दोस्तों। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, and it is nothing but this is d naught by 2, r max is nothing but this is d naught by 2। तो अगर यहाँ पे मैं ZP लिखूं तो सिंपली क्या लिख सकता हूँ, J by R max। यहाँ पे J क्या आएगा दोस्तों, इट कैन बी सिंपली रिटन एज पाई बाई 32 t naught to the power 4 1 minus k to the power 4 divided by t naught by 2। और इसे आप सिंप्लीफाई करो दोस्तों तो सिंपल से आपको ZP मिलेगा, एंड ZP ऑफ होलो शाफ्ट ऐसे लिखो ZPH, एंड J ऑफ होलो शाफ्ट दिस इज JH, करेक्ट। तो ZP of hollow shaft simply we can write pi by 16 t naught cube 1 minus k to the power 4, करेक्ट। तो ऐसा एक रिलेशन मिलेगा, यस और नो। दिस इज ZP पोलर section modulus of this hollow shaft, yes or no, correct। And similarly if we can write J of solid shaft, then it can be written as pi by 32 t to the power 4। और यहाँ पे r max क्या होगा दोस्तों, r max is nothing but this is half of the diameter, correct। और ZP अगर लिखो ZP of solid shaft, then it can be written as JS by r max, and this is nothing but this is equal to pi by 32 t to the power 4 divided by t by 2, yes or no। So ZPS can be written as pi by 16 t to the power 4, yes or no, करेक्ट। तो इस तरीके से हम ZP ऑफ सॉलिड शाफ्ट भी लिख सकते हैं, इसे यस और नो। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए हाउ टू राइट ZP ऑफ सॉलिड शाफ्ट एंड सिमिलरली हाउ टू राइट ZP ऑफ होलो शाफ्ट। एंड वंस यू गेट दिस ZP देन यू कैन इजीली सॉल्व द एंटायर प्रॉब्लम, यस और नो, करेक्ट। अब हम लोग इस सिचुएशन में है, इस स्टेज में है कि वी कैन कंपेयर बोथ द शाफ्ट्स, यस और नो, करेक्ट, वी कैन कंपेयर बोथ द शाफ्ट्स, करेक्ट है दोस्तों। चलिए फिर दोस्तों यहीं पे सेशन को एंड करूंगा मैं, करेक्ट। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना, और आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपको ये लेक्चर कैसे लगा, करेक्ट है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो देन यू कैन आल्सो आस्क मी थ्रू द चैट बॉक्स, करेक्ट। एंड दोस्तों आप हमें टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हो, जिससे आने वाले अपकमिंग वीडियोस की लिंक आपको ऑन टाइम मिल सके। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो विथ माय प्रोमो कोड दैट इज MS10, जिससे आने वाले कोई भी लेक्चर आपके मिस ना हो, करेक्ट है दोस्तों। तो चलिए फिर